हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। टुडे we are discussing a case study of a chapter called corporate social responsibility, in short called CSR. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्मॉल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। एंड a lot of amendment has been made in this chapter and that makes this chapter very important. So without wasting any time, let's start with the case studies which have been asked by ICSI from this chapter over the last 10 years. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2018 फॉर जून फॉर 4 मार्क्स। अब क्या दिया है? इट सेज दैट RS लिमिटेड has incurred rupees 5 lakh for the fulfillment of labor laws, land acquisition act and food safety and standard act in the month of May 2018. The company has accounted for this 5 lakhs as corporate social responsibility expenditure. मतलब कंपनी ने लैंड लॉस का कंप्लायंस किया, कंपनी ने 5 लाख रुपए खर्चा किए लैंड लॉस, लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉस से कंप्लायंस की तरफ, लैंड एक्विजिशन की तरफ एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की तरफ। और कंपनी ने ये जो 5 लाख रुपए खर्चा किए वो कंपनी ने CSR के नाम पे रखे थे। एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ the company said discuss whether the company has rightly accounted for the amount in CSR. क्या कंपनी ने जो खर्चा किया है क्या इसको CSR माना जाएगा कि नहीं? That's something we need to evaluate. अब देखो क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो what you have to do while explaining any case study, सबसे पहले आपको fact of the case present करना पड़ता है। कैसे आप फैक्ट ऑफ द केस प्रेजेंट करोगे? जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है, प्रिसाइज तरीके से, जितना मिनिमम हो उतना लिखना है एंड पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है। तो इसमें अगर आपको कुछ ना समझे तो वहां पे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज प्रेजेंट कर देना सो दैट इट मेक्स ईच फैक्ट अ सेपरेट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? that RS Limited has incurred rupees 5 lakh for fulfillment of labor laws, land acquisition act and food safety and standard act in the month of May 2018. आगे क्या लिखा है? The company has accounted for rupees 5 lakhs as corporate social responsibility CSR expenditure. अब यहाँ पे applicable section में what is being said that if you see जनरल सर्कुलर नंबर 21 ऑफ 2014, नाउ रिमेंबर दिस थिंग, अगर कंपनी कोई भी लॉ का कंप्लायंस कर रहा है, कोई भी स्टैट्यूज का कंप्लायंस कर रहा है, तो उसमें जो भी खर्चा किया जाएगा उसको CSR कंसिडर नहीं करते। तो क्या लिखा है? एज पर जनरल सर्कुलर नंबर 21 2014 issued by MCA dated 18th June 2014 relating to the clarification with regard to the provision of corporate social responsibility under section 135 of Companies Act 2013, expenses incurred by companies for fulfillment of any act, statutes of regulations such as labor laws, land acquisition act, etc. would not count as a CSR expenditure under Companies Act 2013. मतलब कंपनी अगर कोई भी खर्चा करता है in order to comply with the requirement of any statutes, then that amount will not be considered as CSR. अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला है? विच मीन्स दैट यहाँ पे कंपनी ने जो उस एक्सपेंस को CSR माना है, तो क्या वो एक्सपेंस CSR है? आंसर इज नो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? In light of the aforesaid, expenditure of rupees 5 lakhs relating to fulfillment of requirement under Labor Laws, Land Acquisition Act and Food Safety and Standard Act by RS Limited will not be treated as CSR expenditure. मतलब कंपनी ने जो भी खर्चा किया है उसको CSR expenditure के रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? आई थिंक वेरी सिंपल केस स्टडी, बहुत अच्छे से अपने समझ में आ गया है। बेसिक रूल इस केस स्टडी से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कंपनी ने कोई भी स्टैट्यूज को कंप्लाई करने के लिए अगर कंपनी ने कोई भी एक्सपेंसेस किया है देन दैट एक्सपेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR. क्लियर? गुड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अब तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? नाउ इट सेज दैट ये क्वेश्चन 2020 में आया है Sambar में for 3 marks. Now what is being said? It says that DEF Traders Limited is incorporated as a small company. Now ये एक कंपनी को as a small company के रूप में incorporate किया गया है. State with reference to the relevant legal provision whether it is required to be set up
सेटअप है कॉप CSR कमेटी, मतलब क्या इस कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि नहीं, दैट समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्लीकेबल प्रोविजन, कौन सी कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, दैट्स समथिंग वी नीड टू नो। एंड कंपनी के ऊपर CSR प्रोविजन एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 135। तो 135 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, that as per section 135 subsection 1 of Companies Act 2013, which is basically the statutory provision for CSR, the corporate social responsibility provision is applicable to companies which fulfill any of the following criteria। मतलब CSR की जो रिक्वायरमेंट है ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है जो इनमें से, जो नीचे क्राइटेरिया दिए हैं उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल किया है देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कंप्लाई विद CSR प्रोविजन। तो क्या कंडीशंस हैं, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ, कितना नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, मतलब 500 करोड़ और मोर का नेटवर्थ हो, और कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, मतलब 1000 करोड़ और मोर का टर्नओवर हो, और कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद CSR रिक्वायरमेंट। नाउ सब सेकेंड क्या लिखा है कि कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1, मतलब वो कंपनी जिनके ऊपर CSR की एप्लीकेबिलिटी है उन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, shall constitute a CSR committee of the board which is to be called as in short CSR committee। तो they have to constitute a corporate social responsibility committee of the board which is in short to be called as CSR committee। अब to understand the applicability of section 135 subsection 1 on DEF Traders Limited, which is being incorporated as a small company, we also need to understand what is the meaning of small company। अब देखो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में of Companies Act 13 says a small company means a company other than a public company। मतलब स्मॉल कंपनी क्या है, वो पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब स्मॉल कंपनी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores। now यहाँ पे क्या लिखा है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया है 50 lakhs, डज नॉट एक्सीड 50 lakhs, लेकिन वो हायर होके कहाँ तक जा सकता है 10 करोड़। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड टर्नओवर of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crores or such higher amount as may be prescribed which shall not exceed 100 crores। मतलब टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम टर्नओवर कितना है, does not exceed 2 crores, लेकिन ये हायर ऑफ होके कहाँ तक जा सकता है, shall not exceed more than 100 crores। अब यहाँ पे there is a very important amendment which has been made pursuant to Companies Specification of Definition Details Amendment Rules 2021, which is the amendment effective from 1st April 2021। and क्या amendment बोलता है, it says that for the purpose of subclause 1 and subclause 2 of clause 85 of section 2, मतलब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का जो क्लॉज है, now the paid up capital and turnover of small companies shall not exceed 2 crores and 20 crores respectively। now यहाँ पे जो paid up capital की लिमिट थी, what is being said that now paid up share capital की जो लिमिट है shall not exceed 2 crores and turnover की जो लिमिट है shall not exceed 20 crores respectively। इसका मतलब जो करंट लिमिट है उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, मतलब आपकी जो पहले लिमिट 50 lakhs थी, दिस 50 lakhs लिमिट हैव बीन इंक्रीज्ड टू 2 करोड़ विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल, एंड टर्नओवर जिसकी लिमिट 2 करोड़ थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 20 करोड़। क्लियर, एंड दिस amendment under the definition of small company is effective from 1st April 2021। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है, नाउ कंक्लूजन आता है कि अगर DEF ट्रेडर्स लिमिटेड
सेक्शन 135 के कंडीशंस को कंप्लाई करता है तो उनको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट। तो क्या लिखा है, इन लाइट ऑफ द अफोरसेड SDEF Traders Limited is incorporated as a small company if it does not meet the criteria specified in 135 of Companies Act 13 then it would not require to constitute a CSR committee। मतलब अगर ये एक स्मॉल कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो अगर ये क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो इसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया को मीट करेगा तो इसको CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? एंड by virtue of the amendment, because the turnover limit of 2 crores have been increased to 20 crores, now there may be a possibility that because the turnover have increased and 135 में नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़, इसका मतलब देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी मे मीट विद द क्राइटेरिया, बिकॉज इफ वी सी द ओल्ड क्राइटेरिया, now if we see the turnover and the paid up capital of the small company earlier, now it was 50 lakhs and 2 crores, which in no condition will comply with the requirement of 135(1). लेकिन because of amendment there may be a possibility that the criteria of 135 subsection 1 may be meet out, and in that condition the company need to comply with CSR requirement which include constitution of CSR committee। So in this case because वो कंपनी स्मॉल कंपनी के रूप में है और अगर वो 135(1) के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता तो उनको CSR कमेटी एंड CSR के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट केस स्टडी। नाउ ये जो केस स्टडी है, दिस केस स्टडी बीइंग आस्क्ड इन 2019 फॉर 4 मार्क्स। अब क्या दिया इस क्वेश्चन में, लेट्स सी। It says that Wadler Limited is an Indian company with a net profit of 4 crores, 7 crores, 6 crores and 7 crores respectively in the last 4 years। तो last 4 years का net profit दिया हुआ है कंपनी का। Net profit for each of the last 4 years included a dividend of rupees 1 crores received from WB Limited which is an Indian company। मतलब कंपनी का जो net profit है उसमें 1 करोड़ का profit वो है which is nothing but the dividend received from WB Limited from which is an Indian company। Now discuss whether, क्या देखना है अपने को, discuss whether Wadler Limited is required to spend on CSR activity, if yes how much it should spend, if no state the reason for the same। मतलब यहाँ बताना है कि क्या कंपनी के ऊपर, Wadler Limited के ऊपर क्या उनको CSR की तरफ खर्चा करना है, अगर करना है तो कितना करना है और अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। क्लियर? तो सबसे पहले we have to do, we have to write the fact of the case। how we have to write the fact of the case, क्वेश्चन में जो दिया है फैक्ट उसी को पॉइंट वाइज प्रिसाइज मैनर में कवर करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, that Wadler Limited is an Indian company with a net profit of 4 crores, 7 crores, 6 crores and 7 crores respectively in the last 4 years। सेकंड क्या लिखा है, net profit for each of the last 4 years included a dividend of 1 crores received from WB Limited which is an Indian company। अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेबल सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 135 सबसेक्शन 1। सो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 135 सबसेक्शन 1। अब 135 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कंपनी के ऊपर CSR की रिक्वायरमेंट कब आती है। तो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू कंपनीज। किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जब इनमें से जो 3 क्राइटेरिया दिया है उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट आउट हो गया तो कंपनी के ऊपर CSR की रिक्वायरमेंट आ गया। तो क्या लिखा है, विच फुलफिल any of the following criteria during the immediately preceding financial year। and what are the criteria? क्राइटेरिया दिया है, कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, मतलब कंपनी का नेटवर्थ कितना है 500 करोड़ और मोर, और कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, मतलब कंपनी का टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ और मोर, और कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे
नेट प्रॉफिट की जो डेफिनेशन दिया है ना, नेट प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट CSR इट सेज दैट कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ और मोर, देन CSR विल बिकम एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 एक्सप्लेनेशन, नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 198। मतलब CSR में नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, सो इट शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198। अब इफ यू सी CSR रूल्स एंड वहां पे अगर हम लोग रूल 2 पढ़ते हैं तो वहां पे बोला है कि नेट प्रॉफिट में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है, इट सेज दैट as per rule 2 of companies corporate social responsibility policy rules 2014, net profit means the net profit of the company as per its financial statement prepared in accordance with applicable provisions of companies act 13 but shall not include the following। मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो कैलकुलेट किया गया है एज पर सेक्शन 198, लेकिन उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, फर्स्ट any profit arising from overseas branch or branches of the company whether operated as a separate company or otherwise। मतलब अगर कोई भी प्रॉफिट ओवरसीज ब्रांच से आया है या ओवरसीज ब्रांचेस से आया है जो कि एक सेपरेट कंपनी के फॉर्म में ऑपरेट है या नहीं भी है, लेकिन अगर किसी ओवरसीज ब्रांच से अगर कंपनी को प्रॉफिट आया है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। सेकंड क्या लिखा है, एनी डिविडेंड received from other companies in India which are covered under and comply with the provision of section 135 of Companies Act 13। मतलब अगर कंपनी को कोई भी डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से, उस इंडियन कंपनी से जिसके ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल होता है एंड जिसने सेक्शन 135 का कंप्लायंस भी किया है, तो फिर अगर डिविडेंड ऐसी कंपनी से मिला है तो उसको नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोट में क्या लिखा है, दैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 नेट प्रॉफिट मींस द नेट प्रॉफिट ऑफ सच फॉरेन कंपनी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 381 रेड विद 198 ऑफ कंपनी दैट 13। मतलब अगर फॉरेन कंपनी है which has been incorporated outside India and having a place of business in India, तो उनका नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाएगा, it need to be calculated as per section 381 read with section 198। अब देखो अगर कंपनी पे CSR प्रोविजन एप्लीकेबल होगा तो कंपनी को CSR की तरफ कितना खर्चा करना है। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी कवर अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1। मतलब वो कंपनी जो 135 सबसेक्शन 1 में कंप्लाई हो रहा है, वो कंपनी जिनके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, shall ensure that company spend in every financial year, उस कंपनी के बोर्ड को इंश्योर करना पड़ेगा कि कंपनी एवरी फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा करेगा टुवर्ड CSR, एटलीस्ट 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year। मतलब कंपनी को CSR की तरफ कितना खर्चा करना है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 2%, और where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of CSR policy। मतलब अगर कंपनी को 3 साल नहीं हुए हैं तो जितने भी साल हुए हैं उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसका 2% CSR की तरफ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब देखो, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में ये दिया है कि WB लिमिटेड जो कंपनी है जिससे डिविडेंड आ रहा है, क्या उस कंपनी पे CA 135 एप्लीकेबल हो रहा है, और अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो क्या कंपनी 135 के नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहा है। हैव दे मेंशन एनीथिंग इन द क्वेश्चन, आंसर इज नो। तो यहाँ पे आपको ना प्रिजम्पशन करना पड़ेगा। याद रखना बच्चों, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही है तो आप सिर्फ एक ही सिचुएशन को प्रिज्यूम करना, लेकिन मैं आपको दोनों सिचुएशन समझाऊंगा कि अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ जाता, 8 मार्क्स का आ जाता, तो आपको फिर दोनों सिचुएशन के हिसाब से आंसर लिखना पड़ता। But because this question being asked only for 4 marks, so you have to consider only case 1. Clear? But सीखो आप दोनों। यहाँ पे क्या लिखा है, केस 1 में क्या लिया है, assuming that
WB Limited is duly covered under section 135 of Companies Act 13 and is also complying with the provision of 135 of Companies Act 13. मतलब WB Limited माना गया है, we have presumed that कि WB लिमिटेड के ऊपर 135 एप्लीकेबल हो रहा है और वो 135 को कंप्लाई भी कर रहा है. तो अगर ये दोनों चीज फुलफिल होती है तो WB लिमिटेड से जो भी डिविडेंड मिला है वो वार्नर के नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर इंक्लूड किया है तो उसको हटा दिया जाएगा. तो क्या लिखा है, इन सच केस the dividend received by Warner Limited from WB Limited shall be deducted from the net profit of the Warner Limited so as to compute net profit and average net profit for the purpose of section 135 of Companies Act 13. Therefore, net profit of Warner Limited in the last 4 years shall be, कितना net profit हो जाएगा, जो net profit है सब में से 1-1 करोड़ निकाल दो towards dividend. क्लियर? तो इसका मतलब कंपनी को अगर CSR की तरफ खर्चा करना है तो कितना खर्चा करना पड़ेगा. सो CSR अमाउंट टू बी स्पेंट और क्रिएटेड कितना होता है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो यहां पे 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, तो एवरेज नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 6 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2% 17 करोड़ डिवाइडेड बाय 3. इसका मतलब 2%, नाउ 17 करोड़ को 3 से डिवाइड करिए. सो दिस विल बी इक्वल टू 5 crores 66 lakhs 66,667. अब इसका 2% निकालेंगे and that is the amount company have to invest or spend towards CSR. Now this will be equal to 11,33,333. Now this is the amount which company have to invest. मतलब we can take 11,33,334. Now this is the amount company need to create or spend towards CSR. Clear? Now अब यहाँ पे अगर हम लोग केस 2 लेते हैं, नाउ व्हाट केस 2 टॉक्स अबाउट, नाउ केस 2 टॉक्स अबाउट दैट या तो WB लिमिटेड के ऊपर CSR के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, या तो WB के ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं बट WB इज नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 135. अगर ऐसा होता है तो जो डिविडेंड मिला है वो प्रॉफिट में इंक्लूड किया जाएगा, उसको प्रॉफिट से एक्सक्लूड नहीं करेंगे. सो इन सच केस व्हाट इज बीइंग सेड दैट इन सच केस द डिविडेंड रिसीव्ड by Warner Limited from WB Limited shall be included in the net profit of Warner Limited so as to compute net profit and average net profit for the purpose of section 135 of Companies Act 13. Therefore the net profit of Warner Limited in the last 4 years shall be, मतलब जो प्रॉफिट है वही लिया जाएगा, उसमें डिविडेंड का जो अमाउंट है उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे. मतलब 7 करोड़ माइनस नील ही है, लेकिन अगर सेक्शन कंप्लाई होता, अगर 135 एप्लीकेबल होता और 135 कंप्लाई भी होता तो जो डिविडेंड दिया है उसको नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते. याद रखना बच्चों, बिकॉज दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ओनली फॉर 4 मार्क्स, तो आपको सिर्फ केस 1 ही कंसिडर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस 2 देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर यही क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स का आता तो आपको केस 1 और केस 2 दोनों लिखना पड़ता. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट CSR एक्सपेंस कितना हो जाएगा, not 2% of the average net profit of the company made during the immediately preceding financial year. तो कितना हो जाएगा, तो 7 करोड़ प्लस 6 करोड़ प्लस 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया, 2% ऑफ 20 करोड़ डिवाइड बाय 3.
इसका मतलब 20 करोड़ डिवाइड बाय 3 जो अमाउंट आएगा उसका 2% निकालने का है. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2% of 6 crores 66 lakhs 66,667. अब इसका 2% निकालेंगे तो 2% जो आएगा that will be the amount which company need to spend or create towards CSR. Now this is equal to rupees 13 lakhs 33,333.33, which means that it will be equal to 13 lakh 33,334. Now why we have round off to the higher side? Because 2% तो minimum है ना, तो 13,33,333.33 तो minimum है, तो आप इससे कम तो हो ही नहीं सकते, तो you cannot go below, तो आपको हमेशा हायर साइड ही जाना पड़ेगा, विच इज 13,33,334. बिकॉज प्रोविजन ऑफ लॉ क्या बोलता है, दैट दिस इज द मिनिमम यू हैव टू कंप्लाई, विच मीन्स दैट द राउंड ऑफ करते समय भी आपको हायर साइड जाना है, लोअर साइड यू कैन नॉट कंसिडर. क्लियर? दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व्ड. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड in 2017 for 4 marks. Very important question and interesting question. So what the question being given? क्या लिखा है? Now in this question, from the following information in respect of two companies XYZ ZYX Limited and CBA Private Limited, compute the amount the companies are required to spend on account of CSR. मतलब अपने को ये बताना है कि कंपनी को CSR की तरफ कितना खर्चा करना है. अब यहाँ पे 3 फाइनेंशियल दिया है, 14, 15, 15, 16 and 16, 17. Now ZYX Limited being incorporated for less than 3 years and they have a profit of 6 crores and 18 crores, and CBA Private Limited being incorporated for more than 3 years, but in that case they have a losses in 2 financial year and profit in 1 financial year. अब देखो, अब यहाँ पे सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? नाउ इट बेसिकली सेज कि कौन सी कंपनीज के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, एंड व्हाट इज बीइंग सेड that as per section 135 subsection 1 of companies at 13, CSR provision is applicable to companies which fulfill any of the following criteria. मतलब CSR प्रोविजन उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं. फर्स्ट, कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, और कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर. मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो कंपनी को CSR कंप्लाई करना पड़ेगा. एंड अगर 135 सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल हुआ तो कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ेगा टूवर्ड्स CSR? तो इट सेज दैट एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी covered under section 135 subsection 1 shall ensure that company spend in every financial year, कंपनी हर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा करेगा? at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial years, or where the company has not completed a period of 3 financial years since its incorporation during such immediately preceding financial years in pursuance of CSR policy. इसका मतलब कंपनी को कितना खर्चा करना है towards CSR? It will be 2% of the average net profit of the company for the last 3 financial year. और अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं, देन ड्यूरिंग सच पीरियड, मतलब अगर 1 साल 2 साल जितना भी हुआ है उसके एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा और उसका 2% कंपनी को CSR की तरफ कंप्लाई करना है, स्पेंड करना है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कंपनी को 3 फाइनेंशियल ईयर हो गए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, विच मीन्स दैट इन दिस केस इफ वी टेक अ कंपनी लाइक CBA प्राइवेट लिमिटेड, सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट विच कंपनी हैव टू कैलकुलेट और कंपनी हैव टू स्पेंड टूवर्ड्स CSR इन केस ऑफ CBA प्राइवेट लिमिटेड. तो यहाँ पे कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा?
तो CSR अमाउंट टू बी स्पेंड और क्रिएटेड, नाउ दिस इज इक्वल टू 2%। अब देखो लास्ट 3 years में कितना प्रॉफिट है कंपनी को, 4 करोड़ का लॉस है, 1 करोड़ का लॉस है एंड 6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहां पे 4 करोड़ का लॉस है, 1 करोड़ का लॉस है एंड 6 करोड़ का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 करोड़, तो 1 CR डिवाइडेड बाय 3। तो अगर 1 करोड़ को 3 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल कम, सो इट विल कम्स टू 33 lakhs। So 2% of 33 lakh 33,333। अब इसका 2% निकालेंगे, so this will be equal to 66,666.67, which is equal to 66,667. Now this much amount company have to invest or create towards CSR. Now this is very simple because company को 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो गए थे, तो जो भी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 2% कंपनी हैव टू इन्वेस्ट टूवर्ड्स CSR। अब देखो यहाँ पे 666.6 है तो उसको 67 क्यों लिया, बिकॉज अगर दिस इज द मिनिमम, so if you have to go towards the higher side, it will always be on the higher side, which will be equal to 66,667 is the minimum amount which company will spend towards CSR. Now we calculate the CSR expenditure that need to be made in case of ZYX Limited. Now understand this thing. Now यहाँ पे if you see the company ZYX Limited, it has not been incorporated for 3 years, it has been incorporated only for 2 years. अब अगर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 को वापस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कितना खर्चा करना है towards CSR, it will be equal to at least 2% of the average net profit of the company. Now कितने पीरियड के लिए, made during the 3 immediately preceding financial year or where the company has not completed the period of 3 preceding financial years since its incorporation during such immediately preceding financial years in pursuance of CSR policy। मतलब अगर कंपनी को 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं तो जितने भी फाइनेंशियल ईयर हुए हैं उनका एवरेज निकाल के 2%। अब यहाँ पे द क्वेश्चन अराइज कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए अगर 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकाला जाएगा, एंड दैट इज वेयर द कंसल्टेंट्स एंड द लॉ फर्म्स हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो व्हाट, and there is a slight amount of ambiguity on this aspect is there, and a lot of representation being made by the corporate to get a clarity from the ministry. But what the major law firms in India do, what they do, they calculate 2% of the average period. Now what's that mean, which means that what is the average period in this case. Now the company is not been there for 3 financial years, so they calculate the average of 2 financial year, which means that in this case it will be 6 crores plus 18 crores divided by 2. Understand students, there are consultancy firms जो यहाँ पे 6 करोड़ प्लस 18 करोड़ प्लस nil divided by 3 भी करते हैं, but if we see, and that is where the ambiguity lies, but if we see the India's top law firms how they analyze the provision and understand गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहता है कि CSR हो कि ना हो, which means that if you are making more compliance, if you are doing if you are making CSR expenditure more, a government will always welcome this particular move. So यहाँ पे if we take the stand which has been taken by India's top law firms, how it is being calculated, that 24 crores divided by 2, so it will be 2% of 12 crores. So अगर हम लोग 12 crores का 2% निकालेंगे,
that is where the CSR expenditure need to be spent or created by ZYX Limited, and this will be equal to 24 lakhs. This is the amount which company have to spend towards CSR. Clear? Now this is the interpretation which India's top law firms takes, and there are consultancy firms who also take legal who also give opinion or interpretation in this manner. So I just calculating only for your sake of understanding that how these consultancy firms calculate. So 2%, and that is where the ambiguity lies, that what they do, 6 crores plus 18 crores plus nil divided by 3. So how they calculate? It is 24 crores divided by 3. Now this is equal to 8 crores cut 2%, and this will be equal to 16 lakhs. So this is how a lot of consultancy firms gives an explanation. But if we see the India's top law firms, how they calculate, and this is the approach that is always been advisable. Clear? So what is being said, that how much company have to spend towards CSR, because the law is now saying that if the company is not completed 3 years, in that case during such immediately preceding financial years in pursuance of a CSR policy, मतलब जितने भी साल हुए हैं उनका एवरेज निकाल के उसका 2% company have to spend towards CSR. Clear? Now if we see the next question, now let's move to the next question. What is being said, that CSR provisions are applicable to Microskill Limited. The company finalized the project under its CSR initiative which require fund beyond the mandated 2% of the average net profit of the company for the last 3 financial year. मतलब कंपनी ने एक CSR प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया, उसमें कितना खर्चा लगने वाला था, so the amount of money that need to be spent on that is more than 2% for the average net profit of the last 3 financial year. क्या लिखा है, will such excess expenses, जो एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है, when incurred be counted in subsequent financial years as part of CSR expenditure. Advice कि अगर कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया है तो क्या ये सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल में एडजस्ट होगा. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2015 फॉर 4 मार्क्स. अब यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस वी हैव टू प्रेजेंट इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर. तो यहाँ पे CSR provision applicable to Microskill Limited. The company finalized the project under its CSR initiative which required fund beyond mandated 2% of average net profit of the company for last 3 financial year. अब यहाँ पे what is very important changes or amendment which has been made towards CSR provision is that कि कंपनी को फर्स्ट ऑफ ऑल CSR की तरफ कितना खर्चा करना है. सो दैट इज वेयर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 says that as per section 135 subsection 5 the board of directors of every company covered under section 135 subsection 1, मतलब वो हर एक कंपनी जिसके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं उनको कितना खर्चा करना पड़ेगा, shall ensure that company spend in every financial year, कितना खर्चा करना पड़ेगा, at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial years, मतलब लास्ट 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 2%, और where the company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation, मतलब अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल नहीं हुआ है during such immediately preceding financial years in pursuance of its CSR policy. क्लियर. तो वहां पे अगर कंपनी को 3 साल नहीं हुआ है तो फिर जो भी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उनका एवरेज निकाला जाएगा एज पर CSR पॉलिसी. नाउ एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 प्रोवाइजो सेकेंड
if the company spend, very important part, if the company spend an amount in excess of the requirement, मतलब requirement कितनी है 2% वाला, अगर उससे ज़्यादा खर्चा करता है, then such company may set off such excess amount against the requirement to spend under 135 for such number of succeeding financial year and in such manner as may be prescribed. मतलब अगर कंपनी ने ज़्यादा खर्चा किया है तो जो एक्सेस अमाउंट इनकर किया है वो कंपनी सक्सेसिव फाइनेंशियल ईयर में CSR के अमाउंट की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं. So what conclusion we have drawn? So in light of the aforesaid, excess expense when incurred by Microscale Limited may set off and be counted in subsequent financial year as part of CSR expenditure. तो मतलब कंपनी अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है तो वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल में एडजस्ट किया कर दिया जाएगा और वो जो अमाउंट है उसको CSR की तरफ ही कंसिडर करेंगे. क्लियर? नाउ अब यहाँ पे दिस क्वेश्चन being asked in 2015 for 4 marks. अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. It says that Brave Limited is listed at Bombay Stock Exchange and has a net worth of 600 crores. The company has constituted a CSR committee with Jay and Vijay as its member. मतलब कंपनी लिस्टेड कंपनी है, नेटवर्थ 600 करोड़ है. कंपनी ने CSR कमेटी क्रिएट किया जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं, जय एंड विजय. बोथ जय एंड विजय आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जय बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब जय विजय डायरेक्टर्स हैं, जय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट relating to corporate social responsibility, examine whether the company has complied with the provisions of the act in this regard. अब देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस लिखा जाएगा. हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द फैक्ट ऑफ द केस इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, पॉइंट वाइज. तो यहाँ पे ब्रेव लिमिटेड is listed at Bombay Stock Exchange and has a net worth of 600 crores. The company has constituted a CSR committee with Jay and Vijay as its member. Both Jay and Vijay are directors of the company and Jay being an independent director. अब यहाँ पे applicable section में क्या बोला गया है? Now applicable section में it basically says that यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के ऊपर CSR की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल कब होती है, विच इज बीइंग मेंशन अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1. तो 135 सबसेक्शन 1 में क्या बोला गया है? लेट्स सी दिस थिंग. क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, CSR प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब CSR प्रोविजन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल है? उस कंपनी पे एप्लीकेबल है जो इनमें से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया है? इट सेज दैट कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, और कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर. अब अगर कंपनी पे CSR एप्लीकेबल हुआ, कंपनी कवर अंडर CSR 135(1) शैल कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी. तो जिस कंपनी पे CSR एप्लीकेबल होगा उन कंपनी को CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. नॉट ओनली दैट, सच CSR कमेटी, इस CSR कमेटी में कितने लोग होंगे? शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, आउट ऑफ विच 1 डायरेक्टर शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मतलब 3 डायरेक्टर होने चाहिए जिसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. नाउ अब फर्दर क्या लिखा है? It says that as per section 135 subsection 9 of Companies Act 13, where the amount to be spent by the company under 135(5) does not exceed 50 lakh. मतलब जो आप CSR की तरफ खर्चा कर रहे हो अगर वो 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, then the requirement under 135(1) for constitution of CSR committee shall not be applicable and function of such committee in such case shall be discharged by the board of directors of the company. मतलब अगर कंपनी में CSR का जो एक्सपेंस है, जो CSR की तरफ हम लोग खर्चा कर रहे हैं, अगर वो 50 लाख को क्रॉस नहीं करता तो CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है. जो कमेटी का फंक्शन है वो बोर्ड ही परफॉर्म करेगा. अब एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी को कितना CSR की तरफ खर्चा करना है? आंसर इज नो. सो इन दैट केस वी हैव टू प्रिज्यूम दैट कंपनी को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है और कमेटी में कितने लोग होने चाहिए? 3 डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. अब यहाँ पे इन दिस केस क्वेश्चन में कमेटी में कितने डायरेक्टर हैं? 2. तो इसका मतलब CSR कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बराबर नहीं है. क्या लिखा है?
In light of the aforesaid, Brave Limited has a net worth of 600 crores, which is more than the required sum of 500 crores, and therefore Brave Limited has to comply with section 135 of Companies Act 13. However, company has constituted CSR committee with Jain Vijay as its member, and therefore Brave Limited need to reconstitute the CSR committee. क्यों? क्योंकि CSR committee में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 ही हैं. होने कितने चाहिए कम से कम? 3. इसका मतलब कंपनी को CSR कमेटी वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. क्लियर? अब नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट इन दिस केस, अब ये जो सेक्शन है ना, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ दिस क्वेश्चन being asked in 2017 for 5 marks. अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है. It says that Fortune Limited had below financial detail during the last 3 financial year. तो कंपनी का नेटवर्थ दिया है, टर्नओवर दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है. क्लियर? अब डिस्कस द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट for the company on CSR, whether company requires to spend amount on CSR activity and what are the consequences if company fails to spend such amount. मतलब यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि कंपनी को क्या CSR की तरफ खर्चा करना है, और अगर नहीं किया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. नाउ सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR इज प्योरली बीइंग डिसाइडेड अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1. तो क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, CSR प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब CSR प्रोविजन किनके ऊपर एप्लीकेबल है? ऐसी कंपनी के ऊपर जो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. क्या क्राइटेरिया है? कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर. अब देखो, क्या कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ है इन द गिवन एग्जांपल? आंसर इज नो. सेकंड क्या लिखा है? कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर. तो कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ हो, क्या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है? आंसर इज नो. थर्ड, कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर. मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है तो CSR की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है. तो क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है किसी ईयर में? यस, इन फाइनेंशियल ईयर 16-17. तो कंपनी को इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 में CSR करना पड़ेगा. क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 1. वो कंपनी जो 135 सबसेक्शन 1 में कवर हो रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी. सेकेंड थिंग, ये जो CSR कमेटी है इसमें कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो सच CSR कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 or more डायरेक्टर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर नीड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्लियर? अब 135(2) क्या बोलता है? 135(2) सेज कि अगर कंपनी पे CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं एंड कंपनी CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है तो उसका डिस्क्लोजर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देना पड़ेगा. तो क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 स्टेट दैट डायरेक्टर्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी. अब 135 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? इट सेज दैट कि अगर कंपनी के ऊपर CSR कमेटी है तो ये CSR कमेटी एक CSR पॉलिसी बनाएगा जिसके हिसाब से कंपनी CSR की एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करेंगे. तो क्या लिखा है? एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 4, the board of directors of every company covered under section 135 subsection 1 shall take into account the recommendation made by the CSR committee, shall approve the CSR policy for the company and disclose content of such policy in the directors report and also place the same on the website of the company. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? CSR कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है उनको कंसिडर करेंगे, CSR पॉलिसी को अप्रूव करेंगे, जो पॉलिसी का कंटेंट है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाएगा और कंपनी के वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाएगा. The board shall also ensure that the activities as are included in CSR policy of the company are undertaken by the company. मतलब बोर्ड ये भी इंश्योर करेगा कि CSR पॉलिसी में जो जो एक्टिविटीज लिखा गया है बोर्ड उसको कंप्लाई करे. क्लियर? अब सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? नाउ 135 सबसेक्शन 5 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आपको CSR की तरफ कितना खर्चा करना होता है. एंड व्हाट इज बीइंग मेंशन
It says that as per section 135 subsection 5, the board of every company covered under section 135 subsection 1 shall ensure that companies spend in every financial year कितना खर्चा करना पड़ेगा, at least 2% of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where the company has not completed the period of 3 financial year since its incorporation, मतलब अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा है, ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इन परसुएंस ऑफ इट्स सीएसआर पॉलिसी। अब यहाँ पे कंपनी के पास एक चॉइस है कि उनको सीएसआर में जो खर्चा करना है वो कौन से एरिया में खर्चा करना चाहते हैं, वो खुद डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट्स ऑपरेट फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट रिजर्व फॉर सीएसआर एक्टिविटी। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने सीएसआर का जो फंड है जो उनको खर्चा करना चाहिए था टूवर्ड सीएसआर एक्टिविटी वो नहीं कर पाए, तो क्या लिखा है, इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट द बोर्ड इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट शैल स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट एंड अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट्स टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो खर्चा है अगर वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है तो एक तो कंपनी को डायरेक्टर्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कंपनी ने खर्चा नहीं किया, एंड उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर सच अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपको शेड्यूल 7 में जिस फंड की बात हो रही है उसमें पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर। नाउ इफ द कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी ने खर्चा नहीं किया तो जितना खर्चा नहीं किया फंड में ट्रांसफर कर दो 6 महीने के अंदर, और कंपनी ने अगर ज्यादा खर्चा किया है स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट देन सच कंपनी मे सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट, तो मतलब कंपनी वो जो एक्सेस अमाउंट खर्चा किया है उसको सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर सेक्शन 135 फॉर सच नंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मतलब कंपनी ने अगर ज़्यादा खर्चा किया है तो उसको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, नाउ इट सेज दैट एज पर सेक्शन 135 subsection 6 it says that as per section 135 any amount remaining unspent under 135 subsection 5, मतलब अगर कोई भी पैसा अनस्पेंड रह जाता है 135 subsection 5 में, प्रेफर परसुएंट टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द कंपनी, मतलब ये जो पैसा खर्चा नहीं हुआ है ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की तरफ है, मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी तरफ कंपनी ने सर्टेन अमाउंट निकाल के अलग रख दिया लेकिन वो खर्चा उस साल नहीं हुआ। Pursuant to an ongoing project undertaken by the company in pursuance of its CSR policy shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of financial year। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर इस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर द कंपनी within 30 days from the end of financial year to a special account to be opened by the company, मतलब कंपनी को एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसमें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर पैसे को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called as unspent CSR account and such amount shall be spent by the company, मतलब वो पैसा कंपनी कैसे स्पेंड करेगा, तो such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards CSR policy within a period of 3 financial year from the date of such transfer, मतलब CSR की तरफ इस पैसे को खर्चा किया जाएगा कितने दिन के अंदर, 3 years के अंदर from the date of such transfer। तो अनस्पेंड CSR अमाउंट और ये पैसा कंपनी स्पेंड करेगा towards CSR policy within 3 years from the date of such transfer, failing which अगर नहीं कर पाए the company shall transfer the same to the fund specified in schedule 7 within 30 days from the date of completion of the third financial year। तो कंपनी को 3 साल का टाइम दिया जा रहा है कि कंपनी जो अनस्पेंड अमाउंट है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की तरफ
उसको CSR की तरफ खर्चा करे, और नहीं कर पाए तो 3 साल के बाद 30 डेज के अंदर उसको फंड में ट्रांसफर कर देंगे स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7। नाउ अब 135 सबसेक्शन 9 क्या बोल रहा है? 135 सबसेक्शन 9 सेज दैट अगर कंपनी का CSR अमाउंट जो है वो 50 लाख क्रॉस नहीं करता तो CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, एंड जो काम CSR कमेटी का है वो बोर्ड परफॉर्म कर देगा। तो क्या लिखा है? As per section 135 subsection 9 of company that 13, where the amount to be spent by the company under 135(5) does not exceed 50 lakhs, ये 50 lakhs को क्रॉस नहीं करता, the requirement under 135(1) for the constitution of CSR committee shall not be applicable, and the function of such committee shall in such case be discharged by the board of director of such company. Clear? अब यहाँ पे पेनल्टी नॉर्म्स क्या बोला है कि अगर आपने 135 के नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं किया तो क्या पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकता है? तो क्या लिखा है? As per section 135 subsection 1, if company fails to comply with the requirement of 135(5) or 135(6), then it shall be considered as default and penalty shall be levied. किसके ऊपर पेनल्टी आएगी? एक तो पेनल्टी आएगी कंपनी के ऊपर, दूसरी एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कितनी आएगी कंपनी के ऊपर? ट्वाइस द अमाउंट required to be transferred by the company to the fund, मतलब जितना अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर करना था फंड को उसका 2 times और अनस्पेंड CSR अकाउंट एज द केस में भी, मतलब ट्वाइस द अमाउंट। किसका ट्वाइस द अमाउंट? ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी। कहाँ ट्रांसफर करना है कंपनी को? टू द फंड, या तो टू द अनस्पेंड CSR अकाउंट और 1 crore विच एवर इज लेसर। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितनी पेनल्टी आएगी? इट विल बी 1/10, मतलब 10% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी, मतलब 10% जो कंपनी को ट्रांसफर करना है। किसको कंपनी को ट्रांसफर करना है? फंड को ट्रांसफर करना है, या तो अनस्पेंड CSR अकाउंट की तरफ जो ट्रांसफर करना है उसका 10% और 2 lakhs विच एवर इज लेसर। क्लियर? नाउ दिस इज द एक्सपेंस, दिस इज द पेनल्टी विच विल बी लेविड अपॉन द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सो अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन लाइट ऑफ द अफोरसेड, Fortune Limited has net profit of 5.5 crores in financial year 16-17, and therefore Fortune have to comply with the requirement of 135 of company like 13. तो यहाँ पे कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो CSR amount need to be created or spent by Fortune Limited, तो 2% of the average net profit made during immediately preceding 3 financial year. तो क्या फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट था? 5.5 करोड़, 4.5 करोड़ एंड 2 करोड़। तो यहाँ पे 5.5 करोड़, 4.5 करोड़ एंड 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया? 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 4 करोड़ का 2%, एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 lakhs, एंड इतना खर्चा कंपनी को करना पड़ेगा टूवर्ड्स CSR। क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन है, नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ओनली फॉर 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स में इतना डिटेलिंग नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट 135(1), देन यू हैव टू राइट द 135(5) में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, और अगर पेनल्टी का विच इज 135 सबसेक्शन 7, बस इतना ही लिखना है, इतना डिटेल नहीं लिखना है, बिकॉज 5 मार्क्स के लिए द लेंथ ऑफ द आंसर विल बी वेरी हाई। बट अगर यही क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स का आता है, देन यू कैन कवर ऑल द पॉइंट, एंड विद दिस योर केस स्टडीज of CSR is over.